the attainment of nirvana. It is the state of perfect spiritual independence. As you can see, Buddhism has become one of the major religions followed by Indians, and in India, it has gained popularity. Certain characteristics which I have marked out and summarized did not recognize social distinctions based on caste, appealed strongly to members of lower castes, did not demand rigorous asceticism, popular with merchants who used Buddhist monasteries and inns, taught in vernacular language to reach a popular audience, holy sites and shrines facilitated pilgrimages. The 5 precepts of Buddhism: abstain from destroying life, abstain from stealing, from any sexual misconduct, abstain from false speech, abstain from intoxicants. I will go a little fast. Bodhisattvas, enlightened beings, were individuals who had reached spiritual perfection and merited the reward of nirvana, served as a source of inspiration and examples of spiritual excellence. Mandala, the wheel of life motive, you can see in the picture. Buddhism precepts apply to managerial activity. The 5 precepts and 8-fold path of implications for ethical behavior: the right speech, the right conduct, the right understanding, and all. This leads to ethical behavior. And ethical behavior has been given a great importance in any managerial activity. Any organization which goes ahead and has a brand name is one of the ethical organizations. In particular, Buddhist beliefs can manifest themselves in a number of different aspects of management, including leadership behavior, personal development, team living, and use of harmony over conflict, and more gentle approach to people management. And all the principles, which includes 4 noble truth, 8-fold path, 5 precepts, this all constitute the right managerial activity or the managerial activities which leads to a brand name or the success of an organization. Buddhist leadership. The Buddha said, as the solid rock is indifferent to the wind and rain, so the wise are indifferent to criticism and praise. And it is important to maintain one's true self and values. Leadership style may change, but the leader value remains as constant as a rock. Personal development, mindfulness, and trust. The Buddha said, if a man should conquer in battle 1,000 and 1,000 more, in another should conquer himself, his words would be this would be a greater victory, because the greatest of victories is a victory over oneself. Only a man himself can be master of himself, who else outside could be his master. Team building. As the Buddha said, all the great rivers on reaching the great ocean lose their former names and identities and are reckoned simply as a great ocean. So team building and the elimination of I over the group or over as a generic team is given more importance. Importance of harmony. Many do not know that we are in the world to live in harmony. Those who know this do not fight against each other. And people management. Never speak harsh word for one spoken in return to you. Angry words are painful and there may be blows for blows. So, angry or harsh words are not seen as being helpful in building a harmonious organization. Thank you. Thank you very much. The last speaker of this session is Dr. Elish Srivastava. Please present your paper. Dr. Elish Srivastava. मेरे शोध पत्र का शीर्षक है नैतिक दूषित पर्यावरण के परिष्करण में बौद्ध धर्म की भूमिका। अब समय बौद्धिक वाद विवाद, पांडित्य प्रदर्शन, मतांतरों का हिसाब किताब रखने तथा दार्शनिक सिद्धांतों का ऊहापोह करने का नहीं है, वरन उन बिंदुओं एवं कारणों की जांच पड़ताल करने तथा आत्मचिंतन करने का है जिससे मानव का चिंतन
चरित्र एवं आचरण निंदनीय एवं वास्तविक हुआ है। वर्तमान में जीवन के सभी क्षेत्रों व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक में अनेक विकृतियां एवं दोष उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व को अपने गहरे शिकंजे में जकड़ लिया है। व्यभिचार, मर्यादा, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती आदि का व्यापक प्रभाव है। हमारे चारों ओर का नैतिक पर्यावरण अत्यंत दूषित एवं विकृत हुआ है। अब मनुष्य आत्मसंतुष्ट, सुखी एवं शांत नहीं है। अतः ऐसे अशुद्ध एवं अशांत वातावरण को सुधारने में बौद्ध दर्शन किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है, बौद्ध धर्म के प्रसंग में हम उपर्युक्त बिंदुओं पर गहराई से विचार करेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अन्य शास्त्र जीवन के परम लक्ष्य एवं नैतिक आदर्शों के बारे में बताते हैं। दर्शन एकमात्र ऐसा विषय है जो मनुष्य मात्र को उचित ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्रदान कर जीवन के अंतिम लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करता है तथा समाज एवं सुबह को ले जाता है। बौद्ध दर्शन की समग्र शिक्षा मानवीय आचरण को गरिमा प्रदान कर मानव के परम लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करना है। विभिन्न दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्धारण में कार्य कारण का सिद्धांत अत्यंत विख्यात है। बौद्ध दर्शन का प्रकृति संस्था सिद्धांत की इसी शाखा में नियमपूर्ण एवं सुस्पष्ट व्याख्या करता है। महाज्ञानी, महामती, समाज सुधारक एवं उच्च कोटि के दार्शनिक के रूप में ऊपरी महात्मा बुद्ध ने भी प्रकृति संस्था सिद्धांत के आधार पर दुख के मूल कारणों को निकाला एवं उन्होंने इन कारणों की निवृत्ति से ही दुखों की निवृत्ति होना बताया। अगर इस जीवन की आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक तापों की निवृत्ति की अपेक्षा है तो वे दुखों के समूचे पूर्ण विनाश के लिए आष्टांगिक मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के आष्टांगिक मार्ग के सभी नियमों का पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन किया जाए तो मनुष्य जन्म मृत्यु जैसे महान दुखों से मुक्त हो सकता है। साथ ही अपने भौतिक एवं व्यवहारिक जीवन को अनुशासित, मर्यादित एवं चरित्रवान बनाकर समाज, राज्य एवं परिवार की सुख शांति की स्थापना में सहायता प्रदान कर सकता है तथा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लूटपाट, व्यभिचार, बलात्कार जैसी जघन्य प्रवृत्तियों से मुक्त समाज की स्थापना में सहयोग दे सकता है। दार्शनिक जगत में अपनी विद्वता एवं ब्रह्मज्ञान या ब्रह्म विद्या की सुप्रतिष्ठा करने वाले विशिष्ट दार्शनिक आचार्य श्री शंकर ने जन्म मृत्यु जैसे महान दुखों एवं अन्य त्रितापों से मुक्ति हेतु ब्रह्म सूत्र भाष्य में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से यह महत्वपूर्ण एवं मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक प्रश्न उठाया और अंत में सिद्ध किया कि भौतिक एवं सांसारिक उपायों से दुखों की आंशिक निवृत्ति होती है, किंतु ब्रह्मज्ञान ही एकमात्र साधन है जो जीव मात्र को दुखों से आत्मा की निवृत्ति प्रदान कर सकता है। किंतु दुखों से पूर्ण मुक्ति के लिए सांसारिक विषय भोगों से विरक्त होना अनिवार्य है। वही मोक्ष प्राप्ति के लिए समतम आदि साधनों से संपन्न होना आवश्यक है। इन नैतिक साधनों के व्यवहारिक जीवन में क्रियाशील होने से मानव चरित्र एवं मानव मन को निर्मल एवं स्वस्थ बनाया जा सकता है। पश्चिम के महान विचारक सुकरात का जिक्र करना प्रासंगिक होगा, जिन्होंने पांडित प्रदर्शन या ग्रंथ लेखन कर समय की बर्बादी मानी एवं आजीवन घूम कर लोगों एवं नागरिकों को ज्ञानवान, चरित्रवान एवं विचारशील बनाकर करते रहे। उनकी दृष्टि में यदि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो उसमें स्वतः स्फूर्ति सद्गुण की वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यक्ति को सद्गुणी या चरित्रवान बनाने के लिए किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं एवं परिस्थितियों के बारे में पूर्णतः यथार्थ एवं वास्तव ज्ञान रखता है तब उसका आचरण उस ज्ञान की आपूर्ति होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को यह ज्ञान है कि आग जलाती है तो वह कभी भी आग में हाथ नहीं डालेगा, किंतु एक बच्चा तो आग में हाथ डाल ही सकता है क्योंकि वह यह नहीं जानता कि आग जलाती है। इस प्रकार सुकरात व्यक्ति को निरंतर सद्गुण बनाने का प्रयास करते रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात के साथ ही बुद्ध, शंकर, महावीर एवं महात्मा गांधी का यही प्रयास था कि व्यवहारिक धरातल पर आकर मनुष्य मात्र को शिक्षित किया जाए तथा उचित मार्गदर्शन दिया जाए। यहाँ उल्लेखनीय है कि महान विचारक एवं सर्वोत्तम सामर्थ्य एवं व्यक्तिगत कल्याण प्रदान करने वाले महात्मा बुद्ध ने मनुष्य की व्यवहारिक समस्याओं को ही अपने चिंतन एवं उद्देश्यों के केंद्र में रखा। इसलिए उन्होंने 10 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना व्यर्थ एवं समय की बर्बादी समझा। उन्होंने व्यवहारिक धरातल पर घूम-घूम कर जन को जीवन के लक्ष्यों तथा जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। महात्मा गांधी, जिन्हें विश्व की महान विभूति के रूप में जाना जाता है, अपनी आत्मकथा के आरंभ में लिखते हैं कि मेरा उद्देश्य आत्म जगत एवं ईश्वर की तात्विक द्वेषण नहीं है, वरन मनुष्य को किस प्रकार सही रास्ता दिखाया जाए तथा चरित्रवान बनाया जाए। महात्मा बुद्ध द्वारा विकसित आष्टांगिक मार्ग में उन सभी बातों में शिक्षाओं को समावेश है जिससे व्यक्ति आचरणवान हो सकता है। बौद्ध दर्शन के 8 मार्गों में से मैं समझता हूँ 4 मार्ग ऐसे हैं, यदि उनके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए तो वर्तमान में रहते पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रमिक आजीविका एवं संपर्क क्रमांक है।
सम्यक आजीविका से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह उचित एवं साधनों से करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी जीविका को उचित एवं साधनों नहीं चलाएंगे तब तक हमारी प्रवृत्ति सही न होने पर कर्म व्यवहार सही नहीं होगा। अतः कर्म की शुद्धि के लिए मांस का व्यापार, मद्य व्यापार, शस्त्र का व्यापार, प्राणी व्यापार, वृक्ष व्यापार आदि का निषेध किया गया है। यह शिक्षा वर्तमान में हो रहे शस्त्र व्यापार, प्राणी व्यापार, मांस व्यापार में स्मृति आदि पर प्रकट जाती है। वो दर्शन निष्ठता, धोखा, जालसाजी, डकैती, चोरी, लूट, अत्याचार, विश्वासघात जैसी कुछ प्रवृत्तियों को भी जागरूक आचरण किया गया है। इससे वर्तमान में व्यापक स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को समाप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में आचार शुद्धि के लिए 10 शीलों में अहिंसा के स्थान पर है। बुद्ध ने हिंसा को अनार्य कहा है। वे कहते हैं जो प्राणी हिंसा करता है वह आर्य नहीं होता। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करने वाला ही आर्य कहा जाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन का आचार्य मार्ग तथा नैतिक शिक्षा समूचे विश्व में दूसरी नैतिक पर्यावरण को शुद्ध करने में पूर्ण सहायक सकती है। यदि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अक्षर से पालन किया जाए, समूचे विश्व को वैश्विक विकास रूप धारण करने की नैतिक प्रक्रिया हो सकता है। थैंक यू very much. Now I request all the speakers to stay on the dais, and now it's over to the TNF, Venerable Namal Hamsan, to conclude the session. I won't take much time, because normally we should have some content to the audience to question, but we have no time now. I was told that before 5 I had to finish this session, but the concluding session will be starting in this very hall. So I'm very grateful and thanks to all the learned speakers who have given a very fruitful and very knowledgeable paper certificate here. So I'm sorry I could not give this much of time because of the time limit. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. We hope that you all have enjoyed the session by our distinguished speakers. Now I would like to request the respective chairpersons, sir, to represent the speakers with their respective certificates and mementos. Please come to the chairman and take your. Dr. Pooja Vyas. Shri Vasant Pandey. Soumya. Dr. Jaiba Ali. Professor T.V. Srivastava. Thank you very much for everybody. We have to finish it now. Mukherjee, please, the Chancellor of Science University, please come here. We are very happy to have before us such a scholar personality.
Now I would call to Dr. Ram Mohan ji, co-convener of this international conference. Professor Shashi Prabha Kumar ji, our most scholar and affectionate professor. And now I will call to Dr. Professor S.R. Bhatt, convener of this international conference. Dhamma Dhamma, as we know, we have performed a great yajna and we all donated our something very much special. Now with the permission of the chair, Sir Rinpoche ji, I want to say a few words about this conference.